Very good morning, students. Today we'll be dealing with a topic of constitutional law of India. We'll be dealing with the salient features of Indian Constitution. Now let's begin with the topic. Let us first try to know something basic about the Indian Constitution. Now, what is this basic about the Indian Constitution is? It is the lengthiest constitution of the world. Why we are saying it is the lengthiest constitution of the world? The very first reason that we say that it is the lengthiest constitution of the world is because whatever we found good in the constitution which are there belonging to different countries, we tried to take good out of those constitution. So this is the one reason why our constitution became the lengthiest constitution. The another thing is, in our constitution we have a separate chapters for each and every thing. Like for example, for language a separate chapter, for SGSTs a separate chapter, for fundamental rights a separate chapter, for directive principles of state policy a separate chapter, for elections a separate chapter, for emergency a separate chapter. So this is the reason why our constitution has become the lengthiest constitution in the entire world. Next is, originally there were only 395 articles, 22 parts and 9 schedules, but presently it consists of 443 articles, 26 parts and 12 schedules. Next is, there is an incorporation of various good provision of the well-known constitution of the world, and that is the reason why we say that one of the reason for our constitution to be the lengthiest constitution is and to be the best constitution is we have tried to take out something good out of the world's constitution and to incorporate that good thing in the Indian constitution. Now let us have few examples. Like for example, if we take into consideration the serial number 1, we find that from the American Constitution we have taken a chapter on fundamental rights. From United Kingdom we have taken parliamentary form of government. From Ireland Constitution we have taken directive principles of state policy. Likewise, from the Constitution of German we have taken emergency provisions. Students, there is also a Government of India Act 1935 which we have taken as it is in our constitution. So these are the reason and these are basically the very good provisions which we have taken from the constitution of the other countries. Next is, if we take into consideration what the Supreme Court has said over our text of constitution, that is in Bachchan Singh versus State of Punjab, AIR 1982, Supreme Court 1325. In this case, the Supreme Court has said that Constitution ये सिर्फ अपने आप में pedantic legal text नहीं है, ये एक material, मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और चीफ कंसर्न रखता है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन हैं उनका मेन मकसद ही एक लीगल टेक्स्ट प्रोवाइड करना नहीं है बल्कि मटेरियल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल है। एंड इसलिए बेसिकली देखा जाए तो बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये सिर्फ एक मेयर पेडेंटिक लीगल टेक्स्ट नहीं है बल्कि एक ये मटेरियल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। नेक्स्ट इज, अगर हम सेलियंट फीचर्स की बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो व्हाट आर द सेलियंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सो स्टूडेंट्स, देयर आर, वैसे तो बहुत सारे सेलियंट फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, लेकिन कुछ सेलियंट फीचर्स जो जैसे सब एग्री करते हैं, दोज सेलियंट फीचर्स आर दीज फॉलोइंग। देयर आर नियर अबाउट 11 to 12 सेलियंट फीचर्स। तो सबसे पहला सेलियंट फीचर है, प्रियम्बल डिक्लेयर्स इंडिया टू बी सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अब प्रियम्बल जो है बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डिक्लेयर करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सॉवरेन है, सोशलिस्टिक है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है एंड रिपब्लिक है इंडिया। प्रियम्बल डिक्लेयर करता है कि इंडिया कैसा है, इंडिया सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है एंड रिपब्लिक है। सेकंड, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर रहेगा।
तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये बताता है, तीसरा पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन में कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वही सुप्रीम रहेगा। नेक्स्ट इज यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है जो कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन वुड बी अ फाइनल वन। नेक्स्ट इज सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। नेक्स्ट इज सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट अथॉरिटी रहेगी एंड यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी हमको हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती है so far as the amendment of the constitution is concerned. Next is a फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। इंडिया कैसा है? ये एक तरीके का फेडरेशन है, यानी कि बहुत से स्टेट्स मिलके आके एक यूनिट बनाया है, बट इसमें जो पावर्स है, मैक्सिमम पावर्स, जो इंपॉर्टेंट पावर्स है, आर विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो अ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। नाउ नेक्स्ट इज इसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बताया हुआ है, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया है एंड एडल्ट सफरेज के बारे में बताया है। सो दीज आर द salient फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी वन बाय वन व्हाट डज द salient features says। फर्स्ट साइलेंट फीचर सेज दैट प्रियम्बल डिक्लेयर करता है इंडिया को कि वो इंडिया सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है एंड रिपब्लिक कंट्री है। अब बिफोर going to this particular sentence in depth, understanding the meaning of this particular sentence in depth, it is necessary for us to understand the meaning of the term sovereign. Student, sovereign का मतलब होता है सुप्रीम। अब इंडिया जो है वो एक sovereign कंट्री है। जो प्रियम्बल है हमारा वो ये बताता है कि इंडिया एक sovereign कंट्री है। इसका ये मतलब है कि वो सुप्रीम है। सुप्रीम कहाँ से? इंटरनली एंड एक्सटर्नली। साथ ही साथ ये रिकॉग्नाइज नहीं करता है किसी अदर कंट्री की लीगल सुप्रीमेसी को, यानी कि इंडिया जो है वो किसी अदर कंट्री की लीगल सुप्रीमेसी को क्या नहीं करता है? रिकॉग्नाइज नहीं करता है। इंडिया खुद को इंटरनली एंड एक्सटर्नली सुप्रीम मानता है। इंडिया जो है ये कैसा कंट्री है? सुप्रीम कंट्री है। साथ ही साथ ये परमिट भी नहीं करता है किसी अदर स्टेट को या फिर एक्सटर्नल पावर को कि वो इंडिया के इंटरनल या एक्सटर्नल पॉलिसीज में इंटरफेयर करे। India does not permit the other state or external powers to interfere in its internal and external policies. Next is sovereign powers lies in the people of India. जो sovereign powers है वो किसके हाथों में है? इंडिया में लोगों के हाथों में है। इसीलिए हम कहते हैं कि इंडिया ये कैसी कंट्री है? sovereign कंट्री है। ना गोविंद राव वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का जो मैटर है, AIR 1982, सुप्रीम कोर्ट 1201 1204 में क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ऐसा कहा है कि सॉवरेनिटी जो है ये नॉर्मल मीनिंग में एक सुप्रीम पावर है जो कि गवर्न करता है बॉडी पॉलिटिक को और सोसाइटी को, विच कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट, विच वो जो कॉन्स्टिट्यूट करते किस बात को? स्टेट को। एंड द पावर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट, और जो पावर है बेसिकली वो इंडिपेंडेंट है ऑफ अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, वेदर मोनार्कियल, वेदर ऑटोक्रेटिक, वेदर डेमोक्रेटिक। तो कहने का मतलब है गोविंद राव वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सॉवरेनिटी टू इट्स नॉर्मल मीनिंग इज अ सुप्रीम पावर विच गवर्न्स द बॉडी पॉलिटिक और द सोसाइटी विच कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट, एंड द पावर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट, वेदर monarchical, whether autocratic, whether democratic. Now, next terminology is the socialist. Preamble declare India to be a socialist country. Now, what does this mean? This word was first inserted by 42nd Amendment in the year 1976 in the Constitution. India जो है ये socialist country है। इसका ये मतलब है कि there is a control of a state over the means of production. जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है कंट्री में उन सब के ऊपर किसका कंट्रोल रहेगा? स्टेट का कंट्रोल रहेगा। किसी एक के हाथ में कभी भी इसका कंट्रोल नहीं दिया जाएगा, इंडिविजुअल के हाथ में इसका कंट्रोल नहीं दिया जाएगा। द स्टेट वुड बी हैविंग अ कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन।
or the means of production. Our constitution is more committed to a democratic socialism, that is justice, social, economic and political. तो कहने का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कमिटेड है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को लेके, और इसीलिए वो ध्यान रखेगा कि वॉट एवर द पॉलिसीज इट इज गोइंग टू मेक इज टू प्रोवाइड जस्टिस, social, economic and political to its people, and hence we call India to be a socialist country. अब डीएस नाकरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एआईआर 1983 सुप्रीम कोर्ट 130 में क्या कहा गया है? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ऐसा कहा है कि द प्रिंसिपल एम ऑफ सोशलिस्ट स्टेट, जो प्रिंसिपल एम है सोशलिस्ट स्टेट का वो क्या है कि एलिमिनेट करना है, यानी हमें खत्म करना है इरेगुलरिटी इन इनकम, और इंश्योर करना है कि एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ सभी लोगों को मिले जो वर्किंग पीपल है, एंड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी बेसिक फ्रेमवर्क, और साथ ही साथ हम जो है उनको सिक्योरिटी बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर सके. दिस इज एक्चुअली द एम ऑफ द सोशलिस्ट country, and therefore with this aim we call India to be a socialist country. Next is the next terminology is secularism. Now what do we mean by the term secularism? India जो है ये एक न्यूट्रल कंट्री है टुवर्ड्स द रिलीजन. ये बेस्ड है एक प्रिंसिपल के ऊपर, और वो प्रिंसिपल ये कहता है कि टू हैव इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल द रिलीजन. सेकुलरिज्म का दूसरा मतलब हो सकता है सर्वधर्म समभाव. स्टेट जो है वो कमिटेड है कि वो प्रोटेक्ट करेगा political, economic, social as well as religious interest of its people. ये प्रोहिबिट करता है रिलीजन के बेसिस पे किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा. वलसम्मा पॉल वर्सेस कोचीन यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो एआईआर 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या हेल्ड किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोशलिज्म जो है इज अ कॉर्नर स्टोर ऑफ एलिगिटेरियन एंड फॉरवर्ड लुकिंग सोसाइटी. सोशलिज्म जो है इसको हासिल तभी किया जा सकता है जब सेकुलरिज्म को हासिल किया जाए, एंड सोशलिज्म जो है ये कॉर्नर स्टोर है एलिगिटेरियन एंड फॉरवर्ड लुकिंग सोसाइटी का, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है वो एम या वो प्रिंसिपल जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अचीव करना चाहता है. तो सोशलिज्म इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ एन एलिगिटेरियन एंड फॉरवर्ड लुकिंग सोसाइटी विच कॉन्स्टिट्यूशन endeavors to establish. Next terminology is democratic. Preamble declares India to be a democratic country. Now what comes under this phrase, under this term? Under the Indian Constitution, the government gets its authority from the people of India. यहाँ पे डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो गवर्नमेंट है उसको अथॉरिटी किसने दी है? लोगों ने दी है, उसे लोगों ने चुन के लाया है, एंड हेंस गवर्नमेंट जो है वो लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहेगी. इट मीन्स इनडायरेक्टली देखा जाए तो देयर विल बी अ रूल ऑफ पीपल. Adult suffrage for election of Lok Sabha and to Legislative Assembly of every state. यानी कि एडल्ट सफरेज जो है ये बेसिकली वो प्रोसेस है जिसका इस्तेमाल करके हम इलेक्शन करते हैं लोकसभा के और लेजिस्लेटिव असेंबली के हर एक स्टेट में. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द हाउस ऑफ पीपल, दैट इज टू से टू द लोकसभा. तो इस तरीके से देखा जाए तो इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. Next, preamble further declares India to be a republic one. Now, what do we mean by the term republic here? Republic means there shall be an elected head of the state who will function as a chief executive head. The head of the state will not be hereditary monarch. कहने का मतलब है रिपब्लिक का मतलब ये हो गया कि हमेशा जो हेड ऑफ द स्टेट रहने वाला है उसे चुन के लाया जाएगा. जिस पर्सन को हमने हेड ऑफ द स्टेट चुन के लाया है he'll be called as a chief executive head, और ये जो हेड रहेगा स्टेट का ये कोई हेरिडिटरी मोनार्क नहीं रहेगा. द हेड शेल बी एन इलेक्टेड पर्सन जिसे कि हम चूज करेंगे लिमिटेड पीरियड के लिए ही. आफ्टर द लैप्स ऑफ द पीरियड और आफ्टर द एंड ऑफ द पीरियड दिस पर्टिकुलर person would go and the person whom we have elected would again come in picture. So this is the actually provided under Indian Constitution. By virtue of this particular term, the preamble declares India to be a republic country.
Student, this that was a first salient feature. Now let's begin with the second salient feature. Now, what is the second salient feature of Indian Constitution? The second salient feature of Indian Constitution is it speaks about the distribution of power. Now, what is there provided under this particular provision? Indian Constitution provides that there would be a distribution of power between the union government and the state government. That is, say, between the central government and the state government, there would be a distribution of the power. In order to understand, it is very important for us to understand that there are three lists which has been provided under the Indian Constitution. First list is called as a union list, the second list is called as state list, and the third list is called as a concurrent list. Union list provides the subject matter wherein only the union government can make a law. The state list contains the topic wherein only the state government can make a law. And so far as the concurrent lists are concerned, both union and the state government can make a law over those subject matter. Even if after going through all these three lists, if we find that some of the matters been left out, has not been covered under these three lists, then in that case, all those matters over which the law making power would be of the center. So residuary powers are with the center. So this is provided under distribution of the powers. Now let us see what is the third salient feature. The third salient feature is the supremacy of the constitution. Students, here the constitution is declared to be a supreme one. Indian constitution is a written constitution and is a supreme law of land. It is binding on the center as well as on the state government, and hence it is called as a supreme constitution. And this is nothing but a supremacy of the constitution. This is a salient feature of Indian constitution. Now, next is the Supreme Court. Now, fourth salient feature of the Indian Constitution is the Supreme Court. Supreme Court is having a power to interpret the provision of the Indian Constitution, and hence the Supreme Court is having the last say in the matter relating to interpretation of the Constitution and its provision, and hence it become a salient feature of Indian Constitution. The Constitution confers original jurisdiction on the Supreme Court to decide a dispute between the central government and the state government, and a dispute between the state interstate, that is state versus state or state versus states. तो ये भी एक बेसिकली देखा जाए तो सेलियंट फीचर हो गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन दे रहा है क्या करने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में यदि कोई डिस्प्यूट है तो उसको सेटल डाउन करने के लिए, या फिर अगर एक स्टेट और दूसरे स्टेट्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है, देन इन दैट केस उसमें भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन किसका रहेगा, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ही रहेगा. सो दिस इज अगेन अ सेलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रिवेंट करता है यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट को एक दूसरे के पावर्स में एनक्रोच करने से, रोकता है. यानी कुछ इस तरीके से सिस्टम बनाया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक दूसरे के सब्जेक्ट मैटर में या एक दूसरे के काम में एनक्रोचमेंट नहीं कर सकता है, एक दूसरे के पावर्स में एनक्रोचमेंट नहीं कर सकता है. सो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो है वो वॉच रखता है, and therefore the Supreme Court has become a salient feature of Indian Constitution. Next is the Supreme Court act as a custodian of fundamental rights of the citizens. Student, जब किसी का भी fundamental right violate होता है, fundamental right कहाँ provide किया गया है, अभी हमने देखा कि constitution में provide किया गया है. और जिस किसी का भी fundamental right violate होता है, then in that case Supreme Court जो है हम जा सकते हैं बेसिकली फॉर एनफोर्समेंट ऑफ अवर फंडामेंटल राइट. तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक्ट करता है एज अ कस्टोडियन ऑफ अवर फंडामेंटल राइट्स, एंड हेंस इट बिकम अ सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट इज सिंगल सिटीजनशिप. अब आप देख रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है सिंगल सिटीजनशिप. आप सबका आधार बना हुआ है ना,
सो आधार कार्ड मीन्स व्हाट, आप जो है वो इस कंट्री के सिटीजन हैं। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेम्पलेट ड्वेल पॉलिटी, भले ही हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है, लेकिन जो हमारा बेसिकली देखा जाए तो सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है हमारे यहाँ पे, और हम सबके पास में एक ही सिटीजनशिप अवेलेबल है। सो दिस इज अगेन अ सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट अथॉरिटी हमारे पास में। सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट अथॉरिटी मतलब क्या, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये कॉमन है यूनियन गवर्नमेंट के लिए भी और स्टेट्स के लिए भी, साथ ही साथ ये यूनियन और स्टेट अपना अपना काम कैसे करेंगे इस बात का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। कहने का मतलब है बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट ये दोनों में से कोई भी नहीं काम कर सकता है, एंड हेंस ये दोनों के लिए भी सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट अथॉरिटी कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, and therefore this is nothing but a salient feature of Indian Constitution. Now next is unique blend of rigidity and flexibility. Unique blend of rigidity and flexibility means what? अब जो रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडिंग प्रोविजंस को लेके है। कहने का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर बताया गया है उसके रिलेशन में ये रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी के कंसेप्ट को हम डील करेंगे। तो जो रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो डिपेंड करता है उसकी अमेंडेबिलिटी के लिए ऊपर या अमेनेबिलिटी के ऊपर। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 3 तरीकों से बताता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट ला सकते हैं। ये जो अमेंडमेंट के प्रोविजन है आर्टिकल 368 में प्रोवाइड किए गए हैं। तो सबसे पहला तरीका है जिसमें कि हम क्या कर सकते हैं, बिल ऑफ अमेंडमेंट मूव कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, और ये बिल ऑफ अमेंडमेंट जो है ये सिंपल मेजोरिटी से दोनों भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में हम पास कर लेंगे। इसके द्वारा अगर देखा जाए तो जो स्टेट की बाउंड्रीज होती हैं उनको चेंज किया जाता है या अल्टर किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो बिल ऑफ अमेंडमेंट ये इंट्रोड्यूस किया जाता है इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और उसके बाद में उसको प्लेस किया जाता है बाय बोथ द हाउस, उसको पास किया जाता है बाय बोथ द हाउसेस बाय टू थर्ड मेजोरिटी। कहने का मतलब है जो बिल ऑफ अमेंडमेंट है ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में, उसके बाद में जो बेसिकली हमने इंट्रोड्यूस कर दिया उसके बाद में दोनों भी हाउसेस के द्वारा ये पास होना चाहिए 2/3 मेजोरिटी से। इस तरीके से जब कोई बिल पास होता है तो हम क्या करते हैं, एक स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर को ट्रांसफर करते हैं यूनियन लिस्ट में फॉर द पर्पसेस ऑफ मेकिंग लॉ। थर्ड जो है बेसिकली ये प्रोसीजर इट इज वेरी डिफिकल्ट प्रोसीजर। इट इज वेरी डिफिकल्ट क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट इसलिए ऐसा हम बोल रहे हैं क्योंकि इसमें बिल ऑफ अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया जाता है ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में, उसके बाद में वो बिल जो है वो पास होना चाहिए दोनों भी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बाय 2/3 मेजोरिटी, और यहाँ पे वो 2/3 मेजोरिटी से पास होने के बाद में जितने भी बेसिकली हमारे स्टेट्स हैं उनमें से 50% स्टेट्स के द्वारा वो बिल रेक्टिफाइड भी होना चाहिए। दिस इज वेरी डिफिकल्ट प्रोसीजर, और नॉर्मली जितने भी हमारे मेजर अमेंडमेंट्स होते हैं वो सब इसी प्रोसीजर के द्वारा यानी थर्ड वे से देखा जाए तो कैरी आउट किए जाते हैं, और इसीलिए इसीलिए हम ऐसा कहते हैं कि हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक यूनिक ब्लेंड देखने को मिलता है of the rigidity and flexibility. Next is eighth point or eighth salient feature is the federation with a strong center. Federation with a strong center means what? Student, before going to this particular provision, it is very important for us to understand what do we mean by the term federation. जब छोटे छोटे बहुत सारे यूनिट एक साथ आके एक बड़ा यूनिट बना लेते हैं तो उसे हम फेडरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स मिलके आके उन्होंने क्या बनाया है, कंट्री बनाया है। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे फेडरेशन है विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो जो स्टेट्स हैं उनके अपने कुछ पावर्स हैं उन तक रखे गए हैं, बट जहां तक इंपॉर्टेंट पावर्स की बात होती है जैसे डिफेंस की या इमरजेंसी की, ये सब प्रोविजंस की अगर हम बात करते हैं तो हम जो स्टेट्स हैं उन्होंने किसको पावर दे दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दिया उस कंसर्न में, एंड हेंस भले ही सारे स्टेट्स की अपनी एक आइडेंटिटी है, फेडरेशन है, बट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। In the normal time, Constitution provides federal system of government.
but in the emergency it acquires a unitary character. अब नॉर्मल जब समय रहता है तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बताता है कि हमारे इंडिया में फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रहेगा, लेकिन जब बात आती है इमरजेंसी की, देन इन दैट केस जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास में सारे पावर्स आ जाते हैं। कहने का मतलब है जो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट थी वो अब किस में चेंज हो जाती है, यूनिटरी कैरेक्टर में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैन बी बोथ यूनिटरी एज वेल एज अ फेडरल अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द कंट्री। तो ऊपर वाले पॉइंट की अगर हम बात करें तो उसको ध्यान में रखते हुए हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसा टाइम या सर्कमस्टेंसेस चेंज होता है कंट्री में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यूनिटरी एज वेल एज अ फेडरल हो सकता है। नेक्स्ट इज यूनिटरी कैरेक्टर मींस ड्यूरिंग द इमरजेंसी यूनियन गवर्नमेंट एम्पावर्ड होती है लेजिस्लेट करने के लिए वो सब्जेक्ट मैटर्स के ऊपर जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, एंड टू गिव इफेक्ट टू द इंटरनेशनल एग्रीमेंट, साथ ही साथ एट द स्टेट रिक्वेस्ट, साथ ही साथ एट द स्टेट रिक्वेस्ट गिवन इन द स्टेट लिस्ट। इस तरीके से यूनिटरी कैरेक्टर मींस ड्यूरिंग द इमरजेंसी यूनियन गवर्नमेंट जो है वो एम्पावर्ड हो जाएगी कि वो क्या कर सकेगी, लेजिस्लेट कर सकेगी ऑन द सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। साथ ही साथ टू गिव इफेक्ट टू द इंटरनेशनल एग्रीमेंट, इंटरनेशनल एग्रीमेंट के वक्त में भी यूनिटरी कैरेक्टर हो जाता है। साथ ही साथ एट अ स्टेट रिक्वेस्ट भी, जब एक स्टेट जो है वो रिक्वेस्ट करती है बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को कि मेरा जो सब्जेक्ट मैटर है लॉ बनाने का उस पे आप लॉ बना दीजिए, तो उस वक्त भी हम क्या देखेंगे कि फेडरेशन है बट यूनिटरी कैरेक्टर हो गया है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट गेट्स द पावर। Now the union government is empowered to give direction to the states, the manner in which the state government will exercise executive power. Central government जो है वो empowered है कि वो direction दे सकती है state को कि भाई आप अपना executive power इस manner में exercise करिए। इस आधार पे भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि central government is strong। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल अरेंजमेंट जो होते हैं सेंटर एंड द स्टेट के वो भी अल्टर किए जा सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली इस बेसिस पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है दैट बिकम्स मोर स्ट्रॉन्ग दो वी हैव अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, बट इन द special circumstances our central government becomes more strong than in comparison to the state government. So students, this was actually the eighth salient feature of Indian Constitution. Next is the ninth basically salient feature, and that speaks about the fundamental rights. Now the part 3 of Indian Constitution deals with the fundamental rights. The state cannot make any law with which abrogates or violates the fundamental right. यानी कि पार्ट 3 जो है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो डील करता है ऐसे राइट से जो कि फंडामेंटल हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, बट एंड दीज राइट्स आर नेसेसरी, राइट। एंड कोई भी बेसिकली स्टेट लॉ बनाते वक्त में ध्यान रखेगा कि वो ऐसा कोई भी लॉ ना बनाए जो कि इन फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट करता होगा। साथ ही साथ एनफोर्सेबिलिटी इज द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इन फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए क्या कर सकता है, रिट्स इशू कर सकता है एंड ऑर्डर्स इशू कर सकता है। नेक्स्ट इज ये जो फंडामेंटल राइट्स है इनको हम सस्पेंड नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करेगा कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में ही हम इन फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं, अदरवाइज इन फंडामेंटल राइट्स को हम सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। बट दीज फंडामेंटल राइट्स ये अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है और स्टेट जो है वो समय पड़ने पर इनके अगेंस्ट में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकता है। सो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये एब्सोल्यूट हैं क्या, नहीं है, बट इनके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए जा सकते हैं, प्रोवाइडेड वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैसे होने चाहिए, रीजनेबल होने चाहिए। नेक्स्ट इज 10th is the directive principles of state policy. नाउ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये
भी एक सेलिएंट फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसको सेलिएंट फीचर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है और ये बेसिकली प्रिंसिपल जो है ये एम बताता है स्टेट का एम बताता है कि वो गवर्नेंस ऑफ नेशन कैसे करेगा, स्टेट गवर्नेंस ऑफ नेशन कैसे करेगा। यानी द प्रिंसिपल्स सेट द एम्स विच द स्टेट इज सपोज टू टेक इन कंसिडरेशन इन गवर्नेंस ऑफ द नेशन। ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये नॉन जस्टिफाइबल होते हैं एंड अगर स्टेट जो है वो इन बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने का एक्शन नहीं लेता है। नॉन जस्टिफाइबल मीन्स व्हाट, हम अगर सपोज स्टेट जो है उन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट नहीं करता है देन इन दैट केस हम स्टेट के अगेंस्ट में कोर्ट के अंतर्गत या कोर्ट में स्टेट के अगेंस्ट में किसी तरीके का एक्शन नहीं ले सकते हैं। दैट इज व्हाट it has been provided under Indian Constitution and hence we say that this is nothing but a salient feature of Indian Constitution. Now next is the fundamental duties. Students, fundamental duties जो है ये भी एक salient feature इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये प्रोवाइड किया गया है बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51A के अंतर्गत और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत बेसिकली देखा जाए तो फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट किया गया है। ये जो ड्यूटीज हैं ये कंसिडर्ड की जाती हैं कि ये बेसिक नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट हैं जो कि एक गुड सिटीजन से एक्सपेक्ट किया जाता है। So students, I hope you have understood the concept, you have understood the salient features of Indian Constitution. Thank you very much for attending this session. Thank you.